Good morning, students. Hello, how are you? Hope you are very well at your home. Okay, let us start our next chapter, that is the story of my life. The chapter is written by Helen Keller. First of all, I want to tell you something about the writer who is Helen Keller. Helen Keller is a writer, playwright, and this is her own biography. I want to tell you that Helen Keller was born with very good memory, but the nature had done bad to her. That is, she got fever at the age of 1 year, and uh, in that fever, due to that fever, she lost her eyesight and also her hearing power, means she become blind and deaf. In spite of blind and deaf, she did her bachelor complete and also became writer and a teacher. So now we are going to read a chapter, that is story of my life. This is a story, part of her life story, that is the most important day I remember in all my life is the one on which my teacher Annie Mansfield Sullivan came to me. I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects. It was the 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old. इसमें क्या बता रही है हेलन केलर कि उसकी लाइफ का ये बहुत इम्पोर्टेंट डे था जिस दिन उसकी टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलेवान उसके घर आई थी। और उस दिन डेट क्या थी, मार्च का मंथ था और 1887 की बात है, जबकि वो 7 इयर्स की होने वाली थी। On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb expectant. I guessed vaguely from my mother's signs and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was going to happen. हेलन केलर कह रही है कि उस दिन मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, बट घर में जो चहल पहल थी, अब जब घर में किसी ने आना होता है तो घर में उसकी तैयारियां चल रही होती हैं, उस चहल पहल को देखकर मुझे लग रहा था कि आज कुछ घर में खास है। सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स। मैं दरवाजे के पास गई और वहां सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार कर रही थी। द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face. My fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms which had just come forth to greet the sweet southern spring. वो फ्री बैठी थी, वहां पर इंतजार कर रही थी और उसकी हाथों की जो उंगलियां थी वहां पर जो प्लांट्स थे उसके ऊपर वो फेर रही थी। आई डिडेंट नो वट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी। वो कह रही मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में आने वाले समय में उसके लिए क्या हैरानीजनक है। एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी, क्योंकि वो फ्री बैठी थी, उसे पता नहीं था क्या होने वाला है, इसलिए उसे गुस्सा भी आ रहा था और कड़वाहट भी महसूस हो रही थी। Continually for weeks and a deep languor had succeeded this passionate struggle. और जैसे उसके अंदर एक भावनात्मक संघर्ष चल रहा था, उसकी अंतरात्मा में एक संघर्ष चल रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी जैसे जैसे एज बढ़ रही थी, शी वॉन्ट टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहती थी। और शायद यही सोचते हुए उसके फैमिली मेम्बर्स ने, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक टीचर प्रोवाइड करने का सोचा था, जो टीचर आज उसके घर आ रही थी। हैव यू एवर बीन एट सी इन डेंस फोक व्हेन इट सीम्ड एज if a tangible white darkness shut you in, and the great ship, tense and anxious, groped her way toward the shore with plummet and sounding line, and you waited with beating heart for something to happen. अब यहाँ पर हेलन केलर कैसे बात कर रही है, वो कह रही है कि आप कभी समुद्र के किनारे उस अवस्था में गए हो जब चारों तरफ फोग हो, डेंस मीन्स धुंध छाई हो, सब कुछ वाइट हो, आपको पता ना चल रहा हो कि आगे क्या है। और वैसे ही स्थिति उसकी थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगिन।
Only I was without compass or sounding line and had no way of knowing how near the harbor was. वो कह रही मेरी स्थिति बिल्कुल उस शिप के जैसी थी जिसको ये नहीं पता था, जो चारों तरफ से फोग में घिरी हुई थी और जिसको ये नहीं पता था कि आगे किनारा हार्बर है जो वो कहाँ पर है. Light, give me light was the wordless cry of my soul, and the light of love shone on me in the very hour. और वो कह रही कि मेरी आत्मा से क्या आवाज आ रही थी कि रोशनी दो कोई मुझे, मीन्स कोई मुझे दिशा दिखाई. और वही लाइट, वही रोशनी उस पर कब पड़ी, उसी 1 घंटे में. आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप्स, मुझे आते हुए पैरों की जो आवाज है वो मैं महसूस कर सकती थी, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, उसे सुनाई भी नहीं देता था, वो महसूस कर सकती थी. आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड्स एज आई सपोज टू माई मदर, मैंने अपनी बाहें ऐसे फैलाई जैसे मुझे लग रहा था कि मेरी माँ है. Someone took it and I was caught up and held close in the arms of her who had come to reveal all things to me and more than all things else to love me. वो कह रही है कि जैसे ही मैंने बाहें फैलाई, वो बाहों में मुझे किसी ने जकड़ लिया, और वो कौन था जिसने कि मुझे सारी चीज़ों के बारे में जानू करवाया, जानकारी दी, और सबसे ज़्यादा उसने मुझे किस चीज़ का एहसास दिलाया कि मैं अपने आप से भी प्यार कर सकूं. द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम शी लेट मी इनटू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल. जिस दिन उसकी टीचर आई, उस दिन अगली सुबह टीचर ने क्या किया, उसको एक डॉल दी और उसके हाथ में दे दी डॉल. द लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन एट द पर्किन इंस्टीट्यूशन हैड सेंट इट एंड लॉरा ब्राइटमैन हैड ड्रेस्ड इट, बट आई डिडंट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड्स. वो डॉल किसने बनाई थी, जो पर्किंस इंस्टीट्यूशन थी ब्लाइंड चिल्ड्रन की, उन्होंने उसके लिए भेजी थी, और जो लॉरा ब्राइटमैन था उसने इसे ड्रेस अप किया था. व्हेन आई हैड प्लेड विद इट ए लिटिल व्हाइल मिस सुलिवन स्लोली स्पेल्ड इनटू माय हैंड द वर्ड डॉल. वो कह रहे कि जब मैं उसके साथ, डॉल के साथ प्ले कर रही थी, तो मिस सुलेवान ने क्या किया, बिल्कुल मेरे हाथों के ऊपर ऐसे, बिल्कुल हाथों के ऊपर ऐसे जो वर्ड डॉल, डॉल के स्पेलिंग DOLL ऐसे स्पेल करना शुरू कर दिया. आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले. वो कह रही कि मुझे इस फिंगर प्ले में मज़ा आने लगा. एंड ट्राइड टू इमिटेट इट, और मैंने भी वो करने की कोशिश की. When I finally succeeded in making the letter correctly, I was too flushed with childish pleasure and pride. जब मैं वो कर पाई जैसा कि मिस सुलिवन कर रही थी मेरे हाथ पे, तो मेरे में एक जैसे बच्चों जैसा एक खुशी छा गई थी. Running downstairs to my mother, I held up my hand and made the letter for doll. I did not know that I was spelling a word or even that words existed. वो कह रही कि जिस समय मैंने ये किया, मीन्स फिंगर प्ले के साथ जब मैंने ऐसे करने की कोशिश की, उस समय मुझे नहीं पता था कि ये कोई वर्ड है, DOLL कोई वर्ड है, और मैं कुछ शब्द नाम की कोई चीज़ है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जो मैं सीख गई. अब सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन. मैं क्या कर रही थी, सिर्फ मंकी के जैसे इमिटेशन, नकल कर रही थी. In the days that followed, I learned to spell in this uncomprehending way a great many words. और आने वाले दिनों में मैंने कितने शब्द उसी फिंगर प्ले से कितने शब्द सीख लिए, like pen, hot, cup and a few verbs like sit, stand and walk. और कुछ verb सीखे, कुछ noun सीखे मैंने. But my teacher had been with me several weeks before I understood that everything has a name. टीचर्स काफ़ी समय तक उसके साथ थी, उसके बाद उसे पता चला कि हर एक चीज़ का एक नाम होता है. वन डे while I was playing with my doll, Miss Sullivan put me big rag doll into my lap and also spelled doll and tried to make me understand that doll applied to both. पहले तो उसने जब छोटी डॉल दी, उससे मुझे सिखाया कि ये DOLL डॉल है. फिर उसने मुझे बड़ी डॉल दी और मुझे ये सिखाने की कोशिश की कि ये बिग है, ये भी डॉल ही है, मीन्स दोनों को सेम नेम से बुलाया जाता है. अर्लियर इन द डे वी हैड ए टसल ओवर द वर्ड मग एंड वाटर. कह रहे कि एक दिन क्या हुआ, मग और वाटर शब्द में मैं समझ नहीं पा रही थी. अब मिस सुलेवान ने क्या किया, मग में वाटर डाल के मुझे सिखाने की कोशिश की कि जो बाहर वाला हिस्सा है वो मग है और उसके बीच जो है उसको वो वाटर है. बट
वो जो हेलन केलर थी वो समझ नहीं पा रही थी. बट आई persisted in confounding the two. In despair she had dropped the subject for the time. अब क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी तो इसलिए उसकी टीचर ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए उस टॉपिक को छोड़ दिया. Only to renew it at the first opportunity, I became impatient at her repeated attempts and seizing the new doll, I dashed it upon the floor. पर उसके बाद जब टीचर ने दोबारा शुरू किया, अब वो पजल हो गई थी और उसको गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में क्या किया, अपनी डॉल जो नीचे गिरा दी. और क्या हुआ, आई वॉज कीनली डिलाइटेड व्हेन आई फेल्ट द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन डॉल एट माई फीट. अब जब डॉल गिरी उसके टुकड़े हो गए और हेलन केलर कह रही है कि वो उस समय खुश थी क्योंकि गुस्से में थी और उसने कुछ तोड़ दिया था, इससे उसे कोई खुशी मिली थी. नीदर सोरो नॉर रिग्रेट फॉलोड बाई पैशनेट आउटबर्स्ट. वो कह रही ना तो मुझे उस पे पछतावा आ रहा था वो करने पर और ना ही कोई दुख था कि मैंने डॉल को तोड़ा था. आई हैड नॉट लव्ड द डॉल, क्योंकि मुझे डॉल से कोई प्यार नहीं था. इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड इन विच आई लिव्ड देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स ऑफ द टेंडरनेस. क्योंकि हेलन केलर को पढ़ने से पहले, शिक्षा ग्रहण करने से पहले उसकी जो डार्क दुनिया थी, अंधेरी दुनिया थी, उसमें उसको किसी भी चीज़ से प्यार नहीं था. And I had a sense of satisfaction that the cause of my discomfort was removed. She brought me my hat and I knew I was going out into the warm sunshine. This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hope and skip with pleasure. अब उसके बाद मिस सुलिवन ने क्या किया, वो उसको बाहर ले जाने के लिए उसने उसको हैट दी, जिससे उसे पता चल गया कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं. We walked down the path to the well house, attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered. क्योंकि वहाँ से जो फूलों की खुशबू आ रही थी उससे उसे पता चल गया था कि वो वेल हाउस की तरफ जा रहे हैं. Someone was drawing water and my teacher placed my hand under the स्पाउट. वहाँ पर वेल था, कुआं था जिसमें से कोई पानी निकाल रहा था और उसकी टीचर ने क्या किया, जो पानी डाला जा रहा था उसके पानी के नीचे उसका हाथ कर दिया. और जैसे ही हाथ के ऊपर पानी पड़ा तो क्या हुआ, उसको जैसे एक नई रियलाइजेशन हुई. सडनली आई फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस एज समथिंग फॉरगॉटन, a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. और शायद भाषा का भेद उसे स्पष्ट हो गया. I knew then that water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. फिर उसे पता चला कि पानी क्या है, जो उसके हाथों पर एक ठंडी तरल पदार्थ था जो उसके हाथों पर फ्लो कर रहा था, वो वाटर था. That living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free. और उस शब्द ने उसकी आत्मा को जैसे जगा दिया. There were barriers still. It is true that barriers that could in time be swept away. अभी भी कुछ था जो उसे नहीं पता चला था. मीन्स अभी भी सीमाएं थी, बंधन थे, लेकिन वो ऐसे बैरियर्स थे जो बहुत जल्दी हट जाने थे. I left the well house eager to learn. अब उसने वेल हाउस छोड़ा लेकिन उसके मन में एक उत्साह जाग गया था कि eager to learn means कुछ सीखने का उत्साह उसके मन में आ गया था. Everything had a name and each name gave birth to new thought. अब उसने क्या चीज़ सीख ली थी कि हर एक चीज़ का एक नेम होता है और जो हर नेम होता है वो एक नए विचार, एक नई थॉट को जन्म देता है. As we returned to the house, every object which I touched seemed to quiver with life. जब वापिस आ रही थी तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे हर एक चीज में जीवन है. That is because I saw everything with a strange new sight that had come to me. वो कह रही कि अब मैं हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे कि वो सब नया हो. ऑन एंटरिंग द डोर आई रिमेंबर्ड द डॉल आई हैड ब्रोकन. और इसी तरह जो डोल को वो उसने जब तोड़ा था उसे बिल्कुल दुख नहीं हुआ था, पर जब वो अपने रूम में एंटर हुई तो उसको एहसास हो गया, उसको वो अपनी डॉल याद आई. आई फेल्ट माई वे टू द हर्थ एंड पिक्ड अप द पीसेस. उसने वो सारे पीसेस इकट्ठे किए. आई ट्राइड वेनली टू पुट देम टुगेदर. देन माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स फॉर आई रियलाइज्ड व्हाट आई हैड डन. तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट रिपेंटेंस एंड सॉरो. और पहली बार उसे पछतावा हुआ. आई लर्नड ए ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स
that day. I don't remember what they all were, but I do know that mother, father, sister, teacher were among them. Words that were to make the world blossom for me, like Aaron's road with flowers. वो कह रहे हैं कि अब वो शब्द थे, वो इस तरह बन गए थे, जो इस तरह थे मेरे लिए कि जो मुझे एक नया जीवन दे रहे थे. उसने उसमें फादर, सिस्टर, टीचर ऐसे सारे शब्द सीखे. इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू फाइंड ए हैप्पियर चाइल्ड देन आई वॉज एज आई ले इन माई क्रिप एट द क्लोज ऑफ इवेंटफुल डे एंड लिव्ड ओवर द जॉयज इट हैड ब्रॉट मी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग फॉर ए न्यू डे टू कम. वो कह रहे कि उस दिन शायद मेरे से ज़्यादा खुश बच्चा इस धरती पे नहीं था. मीन्स उस दिन शब्दों के बारे में जानकर वो इतनी खुश हो गई थी कि उसको जैसे ज़िंदगी का बहुत बड़ा भेद उसको मिल गया हो. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स. ऑल द बेस्ट.